Hello students, today in this lecture I will discuss with you motion under gravity. Okay. Motion under gravity. Now in this today's topic students, I will teach you how to use the equations of motion whenever the body moves alone due to gravity and the body is moving along vertical direction. That is, the body is either projected vertically upward or it is dropped from the highest most point. Got it, sense? The key point, the motion of the body is due to or against the gravity along the vertical only. Clear? The body moves under the influence of Earth's gravity and the body is in motion along the vertical. Got it, sirs? Okay. Now, how we are going to use the equations of motion? Okay. Clear? Now, the case first. Case first. When the body moves away from the Earth's surface. Okay? When projected at time t equals to 0. Now since remember one thing, after the release of the body either towards the earth or away from the earth, after the release, just after the release, clear? The situation is, let us suppose say that it is the body and this body is projected vertically upward from the point say A at time t equals to 0. Now in this case what will happen? Just after the release, the body will move away from the surface of earth. Got it, sense? That is, the motion of the body is vertically upward. That is away from the surface of earth. Now in this situation what we have to do, in this situation we are going to say that the acceleration which we have to use is say minus g. Okay? The value of g, this g is the acceleration due to gravity and it is 9.8 meter per second square. Got it, sense? Okay? And the equations of motion, they can be written as, say v is equals to u plus at. Okay? This equation can be written as v is equals to u plus bracket minus gt. Got it, sense? The value for a is minus g. Okay? Similarly, the equation s equals to ut plus half at square. It can be written as, say, s is equals to ut plus half of minus g t square. Minus g t square. Got it, sense? And v square minus say u square equals to 2as. This can be rewritten as v square minus say u square is equals to twice of minus of g into say s, where this s is the vertical distance. Got it, sense? S is the vertical distance. Fine. तो ध्यान से देखना बेटा, just after the release of the body देखना है. Just after the release of the body, अगर body अर्थ से दूर जाए तो स्ट्रेस ए का वैल्यू आपने माइनस जी लेना. क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, कॉपी करें.
यस सर, ये तो बात हो गई इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने यूज करनी है। अब बेटा कुछ बातों का ध्यान रखें। जब किसी बॉडी को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉडी राइज करती है, किसी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंचती है। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाती है। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज दैट इट इज द ग्राउंड and the body is projected vertically upwards with some velocity, say u, okay, at time t equals to 0 from the ground. Got it? Let us suppose say that this point is, say, the highest most point. This point B is the highest most point. Highest most point attained by the body. In this case, what we are going to say, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट बेटा किसको कहते हैं? हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट उस वाले पॉइंट को कहते हैं जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होकर के जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट का याद रखें, ध्यान रखें। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द वर्टिकल वेलोसिटी of the body is reduced to zero. Okay, when the body is projected, vertically upward. बेटा बात समझ आ गई? तो याद रखें, द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट। मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, उसके बाद डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगी। क्लियर हो गई बात? तो जब अपवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ अपवर्ड जर्नी को कंसीडर करें तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट इज जीरो। क्लियर? दिस इज द अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी। Got it? ओके, कॉपी करें इसको। कॉपी करें। तो फ्रेंड्स यहां पर इंपॉर्टेंट सिर्फ दो बातें। एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया, देन द बॉडी इट मूव्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दो बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी -g. Got it? Okay, and the final velocity of the body at the highest most point, it will be equals to 0. बस ये दो बातों का ध्यान रखना। समझ आ गई बात? ओके, नाउ द केस सेकंड। केस सेकंड, just after the release the body moves towards the earth's surface just after the release the body moves towards the earth's surface. तो स्ट्रेस सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेट अस सपोज इट इज द वर्टिकल एंड इट इज द बॉडी व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट से ए। अब बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, बॉडी को जब आप पॉइंट ए से रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं। पहला कि जब बॉडी को ए पॉइंट पर ड्रॉप किया, ए पॉइंट से ड्रॉप किया, ड्रॉप कर जब आप कर रहे हैं तो बॉडी को आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और जब ड्रॉप किया का मतलब आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेना है। क्लियर? दूसरी कंडीशन होती है कि द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम स्पीड। तो बेटा जिस स्पीड से फेंका है उस स्पीड को काउंट करना है। बात समझ आ गई? तो इन दिस केस द बॉडी इज रिलीज्ड, ओके, और प्रोजेक्टेड। द बॉडी इज रिलीज्ड और प्रोजेक्टेड, ओके, फ्रॉम
this point say A at time t equals to 0, and after the release the body will approach the earth's surface, the body will move towards the earth's surface. In this case this A is plus G. Okay, the value of G is already told you. Now the equations of motions were V equals to U plus AT. Now this equation can be written as V equals to U plus GT. S is equals to UT plus half AT square. Now this S is written as say UT plus half of GT square. Then V square minus say U square equals to 2AS. This V square minus say U square is written as say twice of G into H. Or say, let us suppose say, we are using S. This S stands for the vertical distance. This S stands for the vertical distance. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, तो सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज, बॉडी कैसे मूव कर रही है. या तो बॉडी अर्थ सरफेस से दूर जाएगी, द बॉडी विल मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और द बॉडी विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. अगर बेटा बॉडी अर्थ सरफेस से दूर जाए तो ए का वैल्यू माइनस जी लेना है, और बॉडी अगर अर्थ सरफेस की तरफ आए तो ए का वैल्यू प्लस जी लेना है. सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? ओके, ठीक है. ओके, कॉपी करें इसको. यस सर. ओके, अब बड़े ध्यान से सुनें. Yes, friends. The question is, a ball is thrown up. A ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. Okay, friends. How high did it go, and with what velocity it was projected? How far below its highest point was in 3 seconds after the start? समझ आ गई बात बेटा? तो पहला जो डाटा है, स्टेप 1 पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं. Let us suppose that this is the ground, और थ्रोअर बॉडी को प्रोजेक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से एट टाइम t इक्वल्स टू 0. Let us suppose that it is a point से A. अब बेटा बॉडी ने, किसी ने बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ तो स्पीड देनी होगी. द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज सपोज से E. तो क्या होगा?
फाइनली बॉडी राइज करती जाएगी। राइज करने के बाद लेट अस सपोज दिस पॉइंट बी इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, तो बॉडी बेटा यहां तक पहुंचेगी। क्लियर? यहां तक पहुंचेगी, तो ये इसका अपवर्ड जर्नी है, ये अपवर्ड जर्नी। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ये बॉडी वापस ग्राउंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा। तो सिंस हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर जब बॉडी होगी तो द स्पीड का वैल्यू दैट विल बी 0। अब यहीं से जब वेलोसिटी रिवर्स होगा, मतलब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, तो अब की बारी इनिशियल वेलोसिटी u को 0 रखेंगे डाउनवर्ड जर्नी में, कि डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई है यहां से। फिर ये फाइनली बॉडी थ्रोअर वापस पकड़ेगा। थ्रोअर ने वापस बॉडी को रिसीव किया एट 4 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहां पर ये इसकी डाउनवर्ड जर्नी। बात समझ आ गई? तो सिंस अपवर्ड जर्नी को अलग से सॉल्व करेंगे, डाउनवर्ड जर्नी को अलग से सॉल्व करेंगे। तो सिंस ये स्टेप 1 है, इंटरप्रिटेशन है। पहला, हाउ हाई डिड इट गो, with what velocity it was projected। तो स्टूडेंट्स इस पहले पार्ट में बेटा ये कैलकुलेट करना है कि बॉडी कितना राइज करेगी। ठीक है, मान लेते हैं यार कि अपवर्ड जर्नी की जब बात कर रहे हैं तो जो हाइट है जो बॉडी अटेन करेगी दैट इज सपोज से इक्वल्स टू h। h इज द हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। गॉट इट? ओके, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, पहले अपवर्ड जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं। अपवर्ड जर्नी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे सिंस इनिशियल स्पीड मालूम नहीं, फाइनल स्पीड 0, क्योंकि हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट की बात हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सेस करता है कि सिंस इस पॉइंट बी तक जब बॉडी पहुंचेगी, या ए से प्रोजेक्ट किया, बॉडी राइज कर रही है, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंच रही है, तो कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम जाने में और वापस आने में लगा 4 सेकेंड, तो अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो यहां पर टाइम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2 सेकेंड। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? तो एक काम करते हैं, पहले हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाइट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हाइट कैलकुलेट अगर करना है तो एक काम करते हैं, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि तो मैंने आपको सिमेट्री से बता दिया कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम आने में लगेगा। पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिर्फ यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। क्लियर? तो यूज कर रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर? ओके, या फिर एक काम करते हैं यार, सिमेट्री मेंटेन कर लेते हैं, सिमेट्री मेंटेन करके रखते हैं। बेटा देखिए, टोटल टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। क्लियर? ऊपर जाने में और वापस आने में टोटल टाइम लग रहा है 4 सेकेंड। तो सिर्फ अपवर्ड जर्नी में जो टाइम लगा दैट विल बी 2 सेकेंड। ओके, टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे को डाटा में दे रखा है। तो v का वैल्यू 0, क्योंकि हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस हो गया, 0 हो गया। u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने u कंसीडर किया। a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस g होता है 9.8, माइनस g माइनस 9.8 हो जाएगा, g का वैल्यू 9.8, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो ये डाटा यूज करके पहले इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो सिंस 0 इज इक्वल टू से u माइनस ऑफ से g की, ओके, मतलब u comes out to be g into t, okay, u comes out to be g is 9.8 and time t is 2, so u comes out to be 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड इतना निकलेगा। कॉपी कर लें आप इसको।
कॉपी करें, डन, ओके। अब तो यहां पर इनिशियल स्पीड u हमने निकाल लिया, इट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। फिर पहला पार्ट, हाउ हाई डिड इट गो, कितना ऊंचा बॉडी राइज करती है। तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हम s इक्वल्स टू u प्लस at भी यूज कर सकते थे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। v फाइनल वेलोसिटी होती है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी डाटा में 0 दिखाई दे रही है। इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया था 19.6 मीटर पर सेकेंड। Thus a is equals to minus g and s is equals to suppose h, where h is the height attained by the ball। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज डाल के कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। इट इज से 0 माइनस से 19.6 स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज ट्वाइस ऑफ माइनस जी इंटू से एच। समझ आ गई बात? ज्यादा हौच पौच हो रहा है तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इट इज से 0 स्क्वायर माइनस से 19.6 स्क्वायर इक्वल्स टू से ट्वाइस ऑफ माइनस जी इंटू एच। एस का वैल्यू एच रखा हुआ, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 19.6 इंटू 19.6 दिस इक्वल्स टू -2 इंटू 9.8 इंटू एच। समझ आ गई बात? अब बेटा 9.8 इंटू 2 होता है 19.6, तो एक 19.6 से एक 19.6 कैंसल आउट हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, तो h comes out to be 19.6 मीटर। h comes out to be 19.6 मीटर। h comes out to be 19.6 मीटर। तो पहला पार्ट समझ आ गया, ओके, क्लियर हो गई बात। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ फार बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट वॉज इन 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब बेटा बॉडी जब स्टार्ट हुई थी, मतलब पॉइंट ए से जब वर्टिकली थ्रो किया था, ठीक है, थ्रो करने के 3 सेकेंड बाद बॉडी कहां है, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट से कितना नीचे है। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, देखिए बॉडी पहले राइज करती है, बॉडी पहले राइज करती है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर से प्रोजेक्ट किया, बॉडी राइज करती है, यहां तक पहुंचती है, टाइम लग चुका है 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड के बाद बॉडी का डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, तो डाउनवर्ड जर्नी यहां पर स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब बेटा टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो 3rd सेकेंड पे हमें पोजीशन कैलकुलेट करना है बॉडी का बिलो द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट। तो बॉडी डाउनवर्ड जर्नी में जब होगी तब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई? तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर तो बॉडी को थ्रो किया था, बॉडी पहुंचती है हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर। फिर बॉडी का डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा तो u इक्वल्स टू 0 मार्क करना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड 0 मार्क करना पड़ेगा। अब बेटा बॉडी मान लेते हैं कि इस पॉइंट C को क्रॉस करती है, बॉडी C को क्रॉस करती है टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, बॉडी यहां से घूम के यहां तक आने वाली, ठीक है। तो अब इसको क्रैक कैसे करना है? अब इसको क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स हम सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी को कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड जर्नी को कंसीडर करेंगे। तो डाउनवर्ड जर्नी को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस सपोज से दिस पॉइंट से B वाज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, दिस पॉइंट A से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, तो स्टूडेंट्स यहां पे डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मार्क कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात?
क्योंकि प्रेजेंट डाटा में टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकंड तो यहां पर है, डाउनवर्ड जर्नी में 3 सेकंड यहां पर हो गया, तो बेटा यहां से बी से लेके सी तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, बॉडी जब इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो टाइम जो लगा दैट इज सपोज से 1 सेकंड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम ये वाली इसको रिड्यूस इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, ओके, और यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस BC, s इज इक्वल टू s, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को s मान लिया, u का वैल्यू 0, a is प्लस g किस लिए, क्योंकि सर जब हम बॉडी को देख रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद बॉडी अर्थ सरफेस के तरफ मूव कर रही है, पास जा रही है, एंड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये वाली वैल्यूज यहां पर प्लेस करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस s इज रिटन एज u इज 0 प्लस इट इज हाफ ऑफ g t स्क्वायर। सो दिस s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 9.8 मल्टीप्लाइड विद 1। कैंसिल करते हैं तो ये s निकल करके आ गया 4.9 मीटर। सो दिस s कम्स आउट टू बी 4.9 मीटर। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? कॉपी कर ले इसको। Now says we are going to target the second problem. A stone is dropped from the cliff and is found to cover and is found to travel, लिख लेते हैं, and is found to travel 46 meter in the last second before it reaches the ground. Question is, find the height of the cliff. Find the height of cliff. मैं read कर रहा हूँ. A stone is dropped from the cliff, from the top of the cliff लिख लेते हैं, top of cliff, and is found to travel 46 meter in the last second before it reaches the ground. We have to find out the height of the cliff. अब ध्यान से समझिए, देखिए, let us suppose say it is the cliff. This AB is the cliff. AB is the cliff. This is the ground. This is the body which is being dropped. Body being dropped. बेटा जब बॉडी ड्रॉप होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रखा जाता है। समझ आ गई बात? The body is dropped from the highest most point.
लेट अस सपोज से मान लेते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 बॉडी को ड्रॉप किया, क्लियर, और बॉडी ग्राउंड को हिट करती है, ग्राउंड तक पहुंचती है एट टाइम t इक्वल्स टू t। क्लियर हो गई बात? मतलब पॉइंट ए से हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज सपोज से स्मॉल t। अब डाटा में क्या कहता है? एंड इज फाउंड टू कवर और ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 46 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। बेटा 46 मीटर कवर किया लास्ट सेकेंड में, बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं बेटा कि बॉडी को हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में 10 सेकंड्स लगते हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये t लिखा हुआ है, ये t का वैल्यू 10 सेकंड होगा। क्लियर? इससे 1 सेकंड पहले बॉडी कहीं हवा में होगी, इससे 1 सेकंड पहले बॉडी कहीं हवा में होगी, लेट अस सपोज इट इज द पॉइंट से c। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर अगर 10 सेकंड है तो यहां पर 9 सेकंड होगा, यस और नो, मतलब इससे एक कम। तो यहां पर इस पॉइंट C को जब बॉडी क्रॉस करेगी तो टाइम इंस्टेंट जो होगा दैट विल बी t माइनस 1 सेकेंड। क्लियर हो गई बात? t से 1 सेकेंड पहले की बात हो रही है। ओके, तो अब डाटा के अकॉर्डिंग ये वाला जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया CB जो डिस्टेंस कवर किया, दिस डिस्टेंस इज 46 मीटर। ये वाला डिस्टेंस 46 है। एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट the height of the cliff. Let us suppose say h be the height of the cliff. तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या सॉरी ये जो डिस्टेंस गिवन है डाटा में, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकंड, दैट इज nth सेकंड। तो वी आर गोइंग टू यूज dn is equals to u plus say a by 2 into 2n minus 1। ओके, बॉडी को ड्रॉप किया था तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन a का वैल्यू प्लस g होगा। dn डाटा में दिया है 46 मीटर, dn is equals to 46 मीटर, u is equals to 0 and a is equals to plus g and the n is equals to small t। n का वैल्यू स्मॉल t, लास्ट सेकेंड। बात समझ आ गई? तो ये वाली वैल्यूज यहां पे डाल के सॉल्व कर लेते हैं। वी कैन से 46 इज इक्वल्स टू से 0 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 2t माइनस 1। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये हो गया जी आपका 46 इज इक्वल्स टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 2t माइनस 1। गॉट इट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। We can say this is 46 multiplied by 2 divided by 9.8 is equals to 2t minus 1. So friends, 46 into 2 is 92 divided by 9.8, it comes out to be 9.38. So 2t minus 1 is 9.38. Got it? So friends, this 2t is written as 9.38 plus 1. Got it? So it is written as, say 2t is equals to 10.38. ओके, यहां से t का वैल्यू मिल जाएगा एंड दिस t इज रिटन एज, बेटा 10.38 को 2 से कर लेते हैं डिवाइड, इट इज 5.19 सेकेंड्स। समझ आ गई बात? कॉपी कर लें इसको। डन। अब ध्यान से देखिए, हमें टाइम का वैल्यू मिल गया। ओके, कितने टाइम में बॉडी यहां से लेके ग्राउंड तक पहुंचेगी। अब टाइम निकालने के बाद स्टूडेंट्स वी कैन यूज से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कॉपी कर लिया इसको। Now we are using
S equals to ut plus half a t square. S was equals to h, the height of the cliff. This u was 0, this a was plus g, and this t is 5.19. 5.19 seconds. So hence solve करते हैं कैलकुलेशन को. This h is 0, u into t 0 आएगा, plus half a 9.8 multiplied with 5.19 square. Okay, so this h is written as, कैंसिल कर लेते हैं, ये 4.9 निकलेगा. It is a 4.9 multiplied with 5.19 multiplied with 5.19. सॉल्व कर लेते हैं इसको. It comes out to be 131.98 मीटर. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से समझे. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक इक्वेशन से काम चलेगा. डिपेंड करता है कि डाटा क्या है. डाटा को यूज करके कुछ मिलेगा और फिर जो गिवन क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फिर उसको कैलकुलेट करेंगे. समझ आ गई बात? कॉपी कर लें इसको. Yes, sir, sir. Now the next question. From the top of the tower, meter high. From the top of the tower, 200 meter high. meter in height कर लें स्टूडेंट्स. 200 meter in height. A ball is dropped. A ball is dropped and at the same time instant another ball is projected vertically upward. Another ball is projected vertically upward. A ball is dropped and at the same time instant another ball is projected vertically upward from the ground. So that it just reaches the top of the tower. Question is, at what height do the two balls cross each other? Question read कर रहा हूं सिर्फ. From the top of a tower 200 meter in height, a ball is dropped
and at the same time instant another ball is projected vertically upward from the ground so that it just reaches the top of the tower at full stop. At what height do the two balls crosses each other? कॉपी करें. Let us suppose it is the ground. It is the point say A on the ground. This point B is the highest most point of the tower. क्वेश्चन में क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. लेट अस सपोज इट इज से द फर्स्ट बॉल, which is dropped from the top of the tower. क्लियर? समझ आ गई ये बात? अब कहता है कि जिस टाइम इंस्टेंट पे एक बॉल को ड्रॉप किया उसी टाइम इंस्टेंट पर, मतलब ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे उसी टाइम पर नीचे से एक बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे. तो यहां से इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया. लेट अस सपोज से ये सेकंड बॉल, ये सेकेंड बॉल. तो फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया, सेकेंड बॉल को प्रोजेक्ट किया. तो बेटा जब फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया तो u is 0 फॉर दिस फर्स्ट बॉल. अब बेटा ये जो सेकेंड बॉल है इसके लिए कुछ तो स्पीड देना होगा. अब क्या हुआ, ये वाली बॉल नीचे आएगी और ये वाली बॉल ऊपर जाएगी. क्लियर? मतलब बेटा फर्स्ट बॉल का डाउनवर्ड जर्नी है और सेकेंड बॉल का अपवर्ड जर्नी है. तो बेटा कहीं तो दोनों बॉल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. मान लेते हैं, लेट अस सपोज से ये वो लेवल है, इट इज द पॉइंट से सी. क्लियर? इट इज दैट लेवल से द पॉइंट सी कि जहां दोनों बॉल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. मतलब फर्स्ट बॉल का जब डाउनवर्ड जर्नी है तो फर्स्ट बॉल सी पे. ओके. अब बेटा ये जो सेकंड बॉल है ये भी सी को क्रॉस करती है. समझ आ गई बात? दोनों को सेम टाइम पर रिलीज किया, दोनों सेम टाइम के लिए मूव कर रही हैं. तो बेटा जब क्रॉस करेंगी तो टाइम इंस्टेंट भी तो सेम होगा. समझ आ गई ये बात? तो फर्स्ट बॉल को अगर आप देखते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, लेट अस सपोज से ड्रॉप किया तो फर्स्ट बॉल c को क्रॉस करती है एट टाइम t इक्वल्स टू t. ये जो सेकंड बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो इसको प्रोजेक्ट किया एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर. अब ये बॉल जब c को क्रॉस करती है तो टाइम t इज इक्वल्स टू t. क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट डू द टू बॉल्स क्रॉस ईच अदर. मतलब बेटा हमें हाइट निकालना है, हमें हाइट निकालना है जब दोनों बॉल्स एक दूसरे को क्रॉस करती है. लेट अस सपोज से h हाइट, चलिए काम करते हैं, x मान लेते हैं. x हाइट पर दोनों बॉल्स एक दूसरे को क्रॉस करती है. समझ आ गई ये बात? तो बेटा क्वेश्चन रीड करके ये समझ आया था. बेटा हाइट ऑफ द टावर कितना है? हाइट ऑफ द टावर है 200 मीटर. टोटल हाइट इज 200 मीटर. ओके. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जब फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया, सेम टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पर सेकंड बॉल को रिलीज किया, प्रोजेक्ट किया. पहले पड़ गई बात? क्रॉस करती हैं c पॉइंट पे. ओके. चलिए पहले फर्स्ट बॉल का डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर करते हैं. फर्स्ट बॉल का डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर करते हैं. फर्स्ट बॉल का डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर करते हैं. ये पूरा डिस्टेंस अगर 200 मीटर है, सी पॉइंट पे दोनों बॉल्स क्रॉस कर रही हैं और सी पॉइंट का हाइट हमने x मान लिया है, तो सिंस ये जो डिस्टेंस BC होगा इट विल बी 200 माइनस x. यस और नो? It is 200 minus x. ओके. तो फर्स्ट बॉल की जर्नी को कंसीडर करते हैं. फर्स्ट बॉल को देखें, यूज करते हैं सेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. s का वैल्यू
200 माइनस एक्स, बी से लेके सी तक 200 माइनस एक्स, u इज 0, दिस a इज इक्वल टू प्लस g, क्योंकि फर्स्ट बॉल का डाउनवर्ड जर्नी है, समझ आ गई बात, टाइम t इज इक्वल टू से स्मॉल। ओके, चारों वैल्यूज यहां पर फिट करते हैं। इट इज 200 माइनस से एक्स इज इक्वल टू से 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, गॉट इट? तो वैल्यू आ गया, इट इज 200 माइनस से एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिंस हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू मिला 200 माइनस एक्स, ओके, समझ आ गई बात? हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू 200 माइनस एक्स, कॉपी करें क्योंकि ये यूज होगा आने वाली इक्वेशंस में, आने वाली कैलकुलेशंस में, कॉपी करें। डन? ओके, बड़ा क्वेश्चन नोट कर लिया, मिटा दूं? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बॉल का जब कैलकुलेशंस किया था, फर्स्ट बॉल की कैलकुलेशंस में हमें क्या मिला? हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू मिला 200 माइनस एक्स, याद रखेंगे इसको, हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला था, ठीक है? अब सेकंड बॉल की कैलकुलेशंस करते हैं, सेकंड बॉल की कैलकुलेशंस करते हैं, क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब सेकंड बॉल्स की कैलकुलेशंस में देखिए, सेकंड बॉल को रिलीज किया फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड सपोज से यू, बॉडी राइज करती है, ठीक है? सिर्फ उतना स्पीड दिया था, सिर्फ उतना स्पीड दिया था कि बॉडी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, क्लियर हो गई बात? सिर्फ उतना स्पीड दिया था कि बॉडी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो पहले इस डाटा को यूज करते हैं और इस डाटा को यूज करके इनिशियल स्पीड निकालते हैं, यूजिंग v स्क्वायर माइनस से u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दस v इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि सिर्फ उतना स्पीड दिया था कि बॉडी हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सके, तो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर स्पीड 0, क्लियर? अपवर्ड जर्नी की बात होगी, सेकेंड बॉल का अपवर्ड जर्नी की बात होगी, ठीक है? u वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट इट, पता नहीं। a इज इक्वल टू माइनस g, क्योंकि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। s डाटा में गिवन था 200 मीटर, बात समझ आ गई? चारों वैल्यूज यहां पे फिट करते हैं, पर सॉल्व करते हैं। 0 स्क्वायर माइनस से u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g इंटू से 200, ओके? तो u स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलता है, इट इज से 2 इंटू से g इंटू से 200, मतलब u स्क्वायर का वैल्यू मिलता है 400g, गॉट इट? बात समझ आ गई? तो u का वैल्यू जो मिला दैट इज 400 का स्क्वायर रूट 20 अंडर रूट g, तो u का वैल्यू मिल गया 20 अंडर रूट g। तो इतनी स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, समझ आ गई बात? ओके, क्लियर हो गई बात? अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी करें, कॉपी करें इसको, डन? अब स्टूडेंट्स, इनिशियल स्पीड जिससे बॉडी को प्रोजेक्ट करना है वो मिल गया। अब बेटा टाइम की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है? यूज करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ओके? तो डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज x,
u का वैल्यू मिल गया, इट इज 20 अंडर रूट g, a का वैल्यू माइनस ऑफ g, t का वैल्यू लेट अस सपोज से स्मॉल t, क्लियर। t टाइम लगा था c पॉइंट तक पहुंचने में। सारी वैल्यूज यहां पर डालकर फिर से कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 20 अंडर रूट g मल्टीप्लाइड विद t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, समझ आ गई ये बात? ओके, अब बेटा फर्स्ट बॉल की जर्नी जब हमने कंसिडर की थी तो हमें इक्वेशन मिला था, 200 माइनस एक्स वॉज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको हमने 1 बोला था। तो यहां से हाफ जी टी स्क्वायर का वैल्यू यहां पर डालते हैं, ठीक है। सो यूजिंग the equation first, x is written as 20 under root g multiplied with t minus half gt square का वैल्यू 200 माइनस x। समझ आ गई बात? So this x is written as 20 under root g multiplied with t minus 200 plus x। यहां पर x से ये x कैंसल आउट हो गया। अब बाकी की बची हुई कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, 20 अंडर रूट g मल्टीप्लाइड विद t इज इक्वल्स टू 200। समझ आ गई ये बात? 20 से 200 को कैंसिल करते हैं, यहां पर आएगा 10, तो t का वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट g। ये t का वैल्यू मिल गया। ओके, अब t का वैल्यू स्टूडेंट्स वापस यहां पर लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यूजिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाफ g t स्क्वायर इट वाज इक्वल्स टू 200 माइनस से x। हमें निकालना था x, t का वैल्यू मिल गया, यहां पर डाल देते हैं। हाफ g 10 का स्क्वायर किया 100, रूट g का स्क्वायर करेंगे g इज इक्वल्स टू 200 माइनस x। g से g हो गया कैंसल, 2 से 100 हो गया कैंसल, तो यहां पे आ गया 50 इज इक्वल्स टू 200 माइनस x। x को यहां पे लाएं, 50 को यहां ले जाएं, सो x इज रिटन एज 200 माइनस से 50, सो x इज इक्वल्स टू 150 मीटर। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ गया 150, मतलब 150 मीटर हाइट पर दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। फाइन, बात समझ आ गई? कॉपी कर लें इसको। आई होप कि आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी बुक्स हैं यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, और याद रखिए ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करना स्टेप 1 सबसे ज़रूरी है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। क्लियर? और ये प्रैक्टिस से आएगा, इट विल टेक सम टाइम। ये टाइम आपके पास अवेलेबल है, यूज़ करिए। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।